Hi everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to cover the topic, the concept of independent directors. Okay, I have seen so many students struggling with this topic without any reason. Like I understand, I accept that this is a bit complex topic. It needs more than 3-4 revisions to have a grip on this topic. So to rule out all the clashes of interpretations we have, I decided to cover this chapter from Institute study material only. Right. So let us move to the concept of independent directors. You need to jump to 1 second. Yes, page number 1.33, independent directors. Okay, the legal provision regarding independent directors are discussed below. The first one is number of independent directors. Following companies are required to appoint specified number of independent directors. Listed company, this is important. Every listed company shall have of the listed company shall have of, I think they omitted here. It should be every listed company shall have at least 1/3 of total number of directors as independent directors. आप यहाँ पे mention कर लेना, every listed company shall have 1/3 of total number यहाँ पे आएगा as independent directors. Any fraction contained in such 1/3 number shall be rounded off as 1. यहाँ पे they have mentioned rightly, है ना. ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी आपका फ्रैक्शन आता है उस 1/3 में, तो उसको अपने अपवर्ड राउंडिंग ऑफ, नियरेस्ट नहीं अपवर्ड राउंडिंग ऑफ करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास अगर 10 डायरेक्टर्स हैं टोटल, तो उसमें से 1/3 कम्स टू 3.33 एंड अपवर्ड राउंडिंग अगर अप्लाई करते हैं इट कम्स टू 4. तो सच अ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 4 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ओके, मूविंग अहेड, अदर पब्लिक कंपनीज. The central government is empowered to prescribe certain minimum number of independent directors in case of any class or classes of public companies taking a step in this direction. Yes, Rule 4 of the Companies Appointment and Qualification of Director Rules 2014 has been framed, which state that following class of companies shall have at least 2 directors. This is important. At least 2 directors as independent directors. What are these companies? Let us see. The first one is such public companies which has a paid share capital of 10 crore rupees or more, or which have a turnover of 100 crore rupees or more, or which have in aggregate outstanding loans, deposits, debentures exceeding 50 crores or more. So this is more than equal to 10 crore, more than equal to 100 crore, but more than 50 crore, not equal to 50 crore. Okay, these class of companies shall have at least 2 directors as independent directors. Next one is requirement of higher number. What does it say? Due to the composition of its audit committee, if a public company covered under the above rule is required to appoint higher number of independent directors, such higher number of directors shall be applicable to it. As per section 177(2) of Act, the auditor committee shall consist of minimum 3 directors with majority directors forming with independent directors forming a majority. What does this mean? इट सेज कि अगर एक कंपनी है जिसको ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है, मतलब उसकी ऑडिट कमेटी की क्राइटेरिया में अगर वो कंपनी फॉल करती है, तो उस कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए. मतलब क्या, अगर कोई कंपनी जो इस रूल में फॉल कर रही हो और उसको ऑडिट कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करनी हो, तो उस कंपनी को मिनिमम 3 डायरेक्टर्स उसमें होने चाहिए और मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज इफ अ कंपनी इज हैविंग से 7 डायरेक्टर्स, ठीक है, 7 में से मेजॉरिटी कितना हो गया? मेजॉरिटी मीन्स मोर देन 50%, मतलब 4 डायरेक्टर्स हमारे उसके हिसाब से, ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिनिमम 4 डायरेक्टर्स हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन इस सेक्शन के हिसाब से मिनिमम 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो अगर ड्यू टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी अगर किसी कंपनी को हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने की ज़रूरत पड़ती है, रखना मैंडेटरी होता है, तो वहाँ पे वो हायर नंबर को हम प्रेफरेंस देंगे. तो इन सच कंपनी मिनिमम 4 डायरेक्टर्स शैल बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रादर देन मिनिमम 2 डायरेक्टर्स. ठीक है, वहाँ पे ये आपकी जो लिमिट है ये ओवरराइड हो जाती है.
ठीक है। मूविंग अहेड, इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. अगर हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्लेस पे कोई वैकेंसी आ जाती है तो वो हमें लिखा है लॉ में जल्दी से जल्दी फुलफिल करनी है, जितना जल्दी आप कर सको। कौन फुलफिल करेगा? बोर्ड फुलफिल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी तो ठीक है, लेकिन मतलब एट लेटेस्ट आपको मैक्सिमम कितने टाइम में फुलफिल वो कर देनी है, तो इट सेज इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 months फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी, विच एवर इज लेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपका डायरेक्टर जो है आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्लेस में कैजुअल वैकेंसी आई, फॉर एग्जाम्पल 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल के बाद हमारी बोर्ड मीटिंग हुई 17 से मई को, तो अपने को क्या देखना है? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, मतलब 16 अप्रैल से अप्रैल मई जून, 16 जून या फिर आपका 17 मई, विच एवर इज लेटर, मतलब 16 जून तक आपको कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ड्यूरेशन ऑफ ओके आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कंडीशन आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट इज रिक्वायर्ड। A company which was obligated to appoint independent director shall not be required to make such an appointment if it ceases to fulfill any of the 3 conditions relating to paid up share capital, turnover, outstanding loans, etc. For 3 consecutive years, it shall again be required to appoint independent director if it start meeting any such condition. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर एक कंपनी इन 3 कंडीशंस में फॉल कर जाती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। फॉर सपोज अगर वो कंपनी नेक्स्ट ईयर में ये कंडीशंस, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही, तो भी उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट ईयर भी फुलफिल नहीं करी क्राइटेरिया, फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। कब तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा? जब तक कि ये कंडीशन वो कंपनी कंसेक्यूटिवली 3 years तक इस क्राइटेरिया में फॉल ना हो रही हो। 3 years के बाद अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा सकते हैं अगर वो मतलब इसमें फॉल नहीं हो रहा ऑब्वियसली, और अगर फिर इन फ्यूचर फिर से फॉल होगा इस क्राइटेरिया में कंपनी, तो फिर से हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की ज़रूरत है। मतलब क्या? अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप एक बार रख लेते हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मिनिमम 3 साल तो आपको लेके चलना पड़ेगा उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ठीक है। मूविंग अहेड, क्लैरिफिकेशन है इसमें कि पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और जो आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स हैं वो अपने को लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेना है, ठीक है। देन एग्जेम्प्टेड क्लास ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, इसमें क्या है कि इन पब्लिक कंपनीज, इन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट अस सी, अकॉर्डिंग टू रूल 4(2) following class of unlisted company shall not be covered under sub rule 1 of rule 4: a joint venture, wholly owned subsidiary and a dormant company as defined under section 45 of the act, ठीक है। ये तीनों एग्जेम्प्ट है, इन तीनों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको, ये जो हमने अभी तक जितना सारा पढ़ा, इसको एक समराइज चार्ट फॉर्म में मतलब इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। आप सिर्फ इस चार्ट को भी रेफर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ होल थ्योरी जो भी ऊपर लिखी हुई है। एक बार देख लेते हैं इसको। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड इन केस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के केस में एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। देन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के केस में अपने को क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 crores और मोर हो, टर्नओवर 100 crores और मोर, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ 50 crores और मोर। यहाँ पे गाइज इफ़ यू आर रेफरिंग दिस चार्ट तो ये ध्यान रखना, इन्होंने मोर देन इक्वल टू 50 crores लिया है, लेकिन ऊपर यहाँ पे लॉ में यू कैन सी इट इज़ क्लियरली रिटन एज एक्सीडिंग ₹50 crores, मतलब इक्वल टू 50 crore आपको नहीं लेना है। इन केस यू रेफर दिस, इसको यहाँ पे आप मार्क कर लेना। यहाँ पे
50 करोड़ नहीं आएगा, ओनली एक्सीडिंग 50 करोड़ आएगा. तो दे आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड. ओके, if due to composition of audit committee any higher number of independent directors are required, such higher number shall be applicable. Then appointment of independent director is not required if a company ceases to fulfill any of the 3 conditions, which is the paid up share capital की condition, turnover की condition या outstanding loan debenture deposit की condition. अगर आपकी fulfill नहीं होती है for any 3 consecutive years, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है. देन जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरीज एंड डोरमेंट कंपनीज आर नॉट कवर्ड अंडर रूल 1 विच मेंशंस अबाउट द मैंडेटरी अपॉइंटमेंट. लाइक सो व्हाट डज दिस मीन? कि जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ओके, मूविंग अहेड, सेक्शन 149(6) हु कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट, दिस एंटायर टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये पर्टिकुलर सेक्शन इज़ लाइक सुपर इम्पॉर्टेंट. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट 2 वाला सेक्शन है, तो इसको करते हैं. In relation to a company, an independent director means a director other than managing director or whole-time director or nominee director. मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर को हटा दिया. वाई? सी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. दे आर इन एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी, है ना. तो वो अनबाइज्ड हो ही नहीं सकते. कंपनी उनको इन सम वे और द अदर इन्फ्लुएंस कर ही लेगी, इसलिए उनको साइड हटा दिया. बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बहुत ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होना होता उसको, है ना. वरना तो फ़ायदा ही क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने का, है ना. तो और सेकंड किसको हटाया? नॉमिनी डायरेक्टर. सबसे पहले नॉमिनी डायरेक्टर होता कौन है? सी, जब एक बैंक किसी कंपनी को लोन देती है ना, मैं 1, 2, 10, 15 करोड़ के लोन की बात नहीं कर रही, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन अगर किसी कंपनी को देती है, तो बैंक क्या करती है? कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना एक पर्सन अपॉइंट कर देती है, जिसको नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं. उस नॉमिनी डायरेक्टर की क्या ड्यूटी होती है? फर्स्टली वो ये चेक करता है कि कंपनी उसके फंड्स को, बैंक के फंड्स को मिस यूटिलाइज तो नहीं कर रही, किसी और पर्पस के लिए यूज़ तो नहीं कर रही, है ना. मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए कंपनी बैंक के फंड्स का. और सेकेंडली वो क्या देखता है कि बैंक की जो रीपेइंग कैपेसिटी है वो उतनी है या नहीं है. कहीं बैंक का लोन डूब तो नहीं जाएगा, कहीं कंपनी ऐसे फंक्शन तो नहीं कर रही कि वो बैंक का पैसा खा जाए और बाद में इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी, है ना. मतलब बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गई, IBBI में चली गई, तो इससे बैंक का पैसा डूब जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से बैंक्स क्या करते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं. ठीक है, अब नॉमिनी डायरेक्टर इज लाइक एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन 149(6) में ना आपको अलग से क्राइटेरिया, इट इज़ मैंडेटरी सेक्शन. ये आपको बताते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है. ये नहीं कि किसी और ने एक पर्सन अपॉइंट करा और आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल के दिखा दो कि हाँ जी ये देखो. नो, इट इज़ अ सेपरेट रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट, इसलिए आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है. तो नॉमिनी डायरेक्टर को इन्होंने हटा दिया. ठीक है, तो एनी पर्सन जो कि ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो, मैनेजिंग डायरेक्टर ना हो, होल टाइम डायरेक्टर ना हो, नॉमिनी डायरेक्टर ना हो, एंड हु फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया. नीचे कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं, उसको ये क्राइटेरिया भी फुलफिल करने हैं. देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 क्राइटेरिया हैं. इसमें 1, 2 एंड 3 तो इंडिविजुअल पे लगते हैं. अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो लोगों का एग्जाम्पल लेंगे. द फर्स्ट वन इज तैमूर अली खान एंड द सेकेंड वन इज सैफ अली खान एंड फैमिली, मतलब. ठीक है, तो तैमूर अली खान वांट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसकी जो रिलेटिव्स हैं उसको हम देखेंगे इस सेक्शन को समझने के लिए, याद रखने के लिए. ठीक है ना. तो ये जो 1, 2 और 3 पॉइंट है, ये दिस टॉक्स अबाउट तैमूर अली खान का क्राइटेरिया, है ना. एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं? रिलेटिव्स के बारे में, मतलब इट टॉक्स अबाउट करीना कपूर एंड सैफ अली खान. फिर 5th पॉइंट है, ये कहता है नीदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव, मतलब ना तैमूर अली खान, ना सैफ अली खान और ना करीना कपूर. इन पॉइंट्स को, मतलब ये क्राइटेरिया तीनों के लिए हैं. देन 6th पॉइंट जो है यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं है, बेसिकली इट इज़ अ क्लैरिफिकेशन. जो ऊपर पॉइंट 1, 2 दे रखे हैं ना, उसकी क्लैरिफिकेशन है. तो आपका क्राइटेरिया यहीं तक है, पॉइंट 5 तक. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तैमूर अली खान जो है, ही वॉन्ट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है,
तो वो क्या करेगा? नंबर 1, who in the opinion of board is a person of integrity and possess relevant expertise and experience. बोर्ड की ओपिनियन में दैट पर्सन तैमूर अली खान मस्ट बी अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी और उसको रेलिवेंट एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस होना चाहिए. बहुत जनरल पॉइंट है. और यहाँ पे इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में इन द ओपिनियन ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? हु इज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स ग्रुप कंपनीज होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट आर कंबाइंडली नोन एज ग्रुप कंपनीज. ठीक है ना. तो तैमूर अली खान उस कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए और ग्रुप कंपनीज का भी प्रमोटर नहीं होना चाहिए. एंड who is not related to promoter or director of company or group companies. वो कंपनी या ग्रुप कंपनीज के प्रमोटर डायरेक्टर से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है जिसमें सैफ अली खान या करीना कपूर से डायरेक्टर या प्रमोटर है, तो तैमूर अली खान उस कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर नहीं बन सकता. सॉरी, उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता. ठीक है ना. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? हु हैज़ और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन रेम्यूनरेशन और ट्रांजैक्शंस नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम with the company, its holding or subsidiary associate and their promoter director during two preceding financial years or during the current year. Very important. सबसे फर्स्ट पेक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब बहुत ही जनरल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है लेन देन. तो उस पर्सन का, तैमूर अली खान का, कंपनी, उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर इन सब के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए इन द करंट ईयर एंड इन द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स. इमीडिएटली प्रीसीडिंग, एक छोड़ के एक नहीं, इमीडिएटली 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में उसका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए कंपनी या ग्रुप कंपनी या प्रमोटर डायरेक्टर के साथ. अच्छा, इसमें अप टू 10% ऑफ ट्रांजैक्शंस, आप 10% ऑफ हिज टर्नओवर, हिज टोटल इनकम, इतना ट्रांजैक्शन आपको अलाउड है. मतलब कंपनी, ग्रुप कंपनीज और उसके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब तैमूर अली खान अपनी इनकम का 10% तक का ट्रांजैक्शन कर सकता है. ठीक है. उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन कंपनी और ग्रुप कंपनीज और पूरी ग्रुप कंपनी, देयर प्रमोटर डायरेक्टर मतलब पूरी ग्रुप कंपनीज के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ नहीं होना चाहिए. ओके. यहाँ क्या लिखा है मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हम जनरल पब्लिक के साथ भी करते हैं तो उसको हम पेक्यूनरी रिलेशनशिप का नाम नहीं देंगे. ठीक है ना. और पेक्यूनरी रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें नहीं आती? पेक्यूनरी रिलेशनशिप डज नॉट इंक्लूड रिसीट ऑफ रेम्यूनरेशन, बिकॉज आपने काम किया है तो रेम्यूनरेशन तो इज़ राइट, यूर राइट. ओके. देन रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस आपका नहीं आएगा. और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय मेंबर्स, अगर मेंबर्स ने कोई प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन को अप्रूव किया है तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है. यहाँ पे हम एक और चीज़ पढ़ेंगे 197 में, इट से सिटिंग फीस. सिटिंग फीस भी आपका पेक्यूनरी रिलेशनशिप में नहीं आता है, प्रोवाइडेड कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप जो सिटिंग फीस दे रहे हो वो आपके नॉर्मल डायरेक्टर्स के इधर एट पार होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है. तो ये सारा मेरे पेक्यूनरी रिलेशनशिप में नहीं आएगा. देन यहाँ पे बोला है कि ये सेक्शन, ये पेक्यूनरी रिलेशनशिप वाला पॉइंट ना डज नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी इफ इट has not committed a default in filing financial statements or annual return. गवर्नमेंट कंपनी को ये पॉइंट नहीं लगेगा. ओके. देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव, इट टॉक्स अबाउट द रिलेटिव्स. रिलेटिव्स की बात करते हैं, मतलब करीना कपूर हो गई आपकी और सैफ अली खान, इनके बारे में बात करते हैं. रिलेटिव्स कौन से वाले? जो सेक्शन 277 में बता रखे हैं ना रिलेटिव्स, वो वाले रिलेटिव्स की यहाँ पे बात करते हैं. ओके. सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नन ऑफ हुज रिलेटिव मतलब करीना कपूर और सैफ अली खान इज नॉट, शुड नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी और द ग्रुप कंपनीज ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग द करंट ईयर. मतलब कि उनको कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड नहीं करना है कंपनी में या ग्रुप कंपनीज में पिछले 2 सालों में और करंट ईयर में. ठीक है ना. हाउ एवर रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट अप टू अ फेस वैल्यू ऑफ ₹50 lakhs और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी और ग्रुप कंपनीज. ठीक है.
क्या कह रहा है कि करीना कपूर सैफ अली खान क्या कर सकते हैं, 50 लाख के फेस वैल्यू तक की या फिर 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ग्रुप कंपनीज, इतनी सिक्योरिटीज होल्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सिक्योरिटी करंट ईयर में या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में वो होल्ड नहीं कर सकते इफ तैमूर वांट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। द नेक्स्ट वन इज none of whose relative, मतलब करीना कपूर and Saif Ali Khan is indebted to the company or group companies or their promoter director for an in excess of rupees 50 lakhs during the 2 preceding financial year or during the current financial year। मतलब कि करीना कपूर और सैफ अली खान ने कंपनी से या फिर कंपनी के ग्रुप कंपनी से या फिर ग्रुप कंपनीज के प्रमोटर डायरेक्टर, कंपनी ग्रुप कंपनी और सबके प्रमोटर डायरेक्टर से 50 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं लिया होना चाहिए, ठीक है ना, सारे रिलेटिव्स ने मिला के करंट ईयर में और प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहते हैं, करीना कपूर एंड सैफ अली खान हैज़ नॉट गिवन गारंटी और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी इन रिलेशन टू इंडेटेडनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू द कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, मतलब टू द कंपनी, टू द ग्रुप कंपनी एंड देयर मतलब सबके प्रमोटर डायरेक्टर इन एक्सेस ऑफ अमाउंट रुपीज 50 lakhs, ठीक है ना, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। पिछले 2 सालों में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको किसी भी थर्ड पार्टी के इंडेटेडनेस से रिलेटेड गारंटी या सिक्योरिटी नहीं देनी है करीना कपूर को और सैफ अली खान को। किसको नहीं देनी, कंपनी को, ग्रुप कंपनीज को और सबके प्रमोटर डायरेक्टर को 50 लाख से ज़्यादा की, ठीक है। और 4th पॉइंट क्या कहता है, Kareena Kapoor and Saif Ali Khan shall not have any other pecuniary relationship or transactions with the company or the group companies amounting to 2% or more of its gross turnover or total income, singly or in combination with the transactions in 1, 2, 3। बहुत important, ये क्या कह रहा है, ये जो ऊपर हमने 1, 2, 3 पढ़े ना, ये तीनों मिला के और इसके अलावा अगर कोई और भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप है वो सब मिला के 2% या उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब 2% या उससे ज़्यादा मतलब आपकी कंपनी, आपकी ग्रुप कंपनीज का जो भी ग्रॉस टर्नओवर है या फिर जो भी आपका टोटल इनकम है उससे उसके 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो 2% की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहे थे, यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल के 2% की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, किसकी, ऑफ द होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या फिर कंपनी की। तो सारी की सारी ये 1 + 2 + 3 प्लस कोई और अगर अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप का कोई ट्रांजैक्शन है वो, ये सारा का सारा कितना होना चाहिए मैक्सिमम, अपना कंसोलिडेटेड टर्नओवर या फिर कंसोलिडेटेड जो आपकी टोटल इनकम है मैक्सिमम उसका 2% होना चाहिए, ठीक है। देन मूविंग अहेड, पॉइंट नंबर 5, हु नीदर हिमसेल्फ मतलब तैमूर अली खान भी नहीं एंड नन ऑफ हिज रिलेटिव्स मतलब उस सैफ अली खान और करीना कपूर भी नहीं, ये सारे काम इनमें से किसी को भी नहीं करने। कौन से, ये चारों 1, 2, 3, 4 ABCD, ये जो लिखे ना ABCD, ये चारों काम किसी को भी अलाउड नहीं है। फर्स्ट क्या है, तैमूर अली खान, सैफ अली खान, करीना कपूर शैल नॉट होल्ड और हेल्ड द पोजीशन ऑफ KMP or has been an employee of the company or its holding or the group companies in any of the 3 financial years immediately preceding financial year in which he is proposed to be appointed। मतलब अगर तैमूर अली खान wants to be an independent director, ना सैफ ना करीना ना तैमूर, KMP मतलब कि क्या, डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, प्रमोटर नहीं होने चाहिए और मतलब KMP नहीं होने चाहिए उस पर्टिकुलर के, और एम्प्लॉय भी नहीं होने चाहिए, किस किस में, कंपनी में भी नहीं, ग्रुप कंपनीज में भी नहीं, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में और करंट ईयर जहाँ पे भी आप देख रहे हो वहाँ तक आपका कोई भी KMP नहीं होने चाहिए, आप और आपके रिलेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज, however relative who is an employee, no restriction is there और फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट। रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है, मतलब आप एक ऐसी, तैमूर अली खान उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है जिसमें सैफ अली खान एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन
पॉइंट बी क्या कहता है कि तैमूर अली खान, सैफ और करीना, he is or has been, should not be an employee or proprietor or partner in any of the 3 financial year immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed of. किसके आप एम्प्लॉय, प्रमोटर या फिर पार्टनर नहीं बन सकते? फर्म ऑफ ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी और द ग्रुप कंपनीज. किसी ऐसी फर्म का, ऑडिट फर्म का या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी फर्म का आप एम्प्लॉय, पार्टनर या प्रोप्राइटर नहीं बन सकते जो कि आपकी कंपनी या ग्रुप कंपनीज की फर्म हो. एक फर्म जो आपकी कंपनी का ऑडिट कर रही है, ठीक है, आप अगर उसके पार्टनर हो तो आप कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो? नहीं बन सकते ना. या फिर आपका रिलेटिव, सपोज तैमूर अली खान wants to be an independent director और जिस रिलायंस का, ठीक है, और रिलायंस का जो ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसमें एक पर्सन उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिटर फर्म की का जो पार्टनर है, जो रिलायंस का ऑडिट कर रहा है, वो सैफ अली खान है. तो हाउ कुड तैमूर बी इंडिपेंडेंट? हो ही नहीं सकता, ठीक है. या फिर आप एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं बन सकते किसी भी ऐसी लीगल या कंसल्टिंग फर्म के जिस पे ट्रांजैक्शन विद द कंपनी और द ग्रुप कंपनी अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म. जिस लीगल कंसल्टिंग फर्म की टर्नओवर का 10% से ज़्यादा आपको कंपनी या ग्रुप कंपनी से मिल रहा है, ऐसी किसी भी लीगल कंसल्टिंग फर्म का आप या आपका रिलेटिव एम्प्लॉय, पार्टनर या प्रोप्राइटर नहीं बन सकता. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तैमूर अली खान उसका डायरेक्टर बनना चाहता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज आउटसोर्स कर रखी है किसी सपोज PwC को, और PwC का जो एम्प्लॉय है वो है सैफ अली खान. तो ऐसे केस में सैफ अली खान और तैमूर का जो रिलेशनशिप है उसमें इंडिपेंडेंस आ ही नहीं सकती. तो तैमूर कैन नॉट बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है. देन सैफ अली खान और तैमूर अली खान, करीना कपूर, ये सारे, थर्ड पॉइंट क्या है, holds together with his relatives 2% or more of the voting power of the company, only company not the group companies. ये सारे मिलके 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड नहीं कर सकते कंपनी में. आप होल्डिंग में कर सकते हो, सब्सिडी में कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, तैमूर अली खान वॉन्ट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ A लिमिटेड, ठीक है ना. A लिमिटेड की होल्डिंग है B लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी है C लिमिटेड. अब तैमूर अली खान ने 1% होल्डिंग ले रखी है से A लिमिटेड में, लेकिन करीना कपूर की 5% होल्डिंग B में, सैफ अली खान की 6% होल्डिंग C में. तो 6, 5, 11, 1, 12. ये 12 क्या नहीं देखना है, आप या आपका रिलेटिव उसके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में चाहे जितनी मर्जी होल्डिंग लेके बैठे, ठीक है, दैट डज नॉट मैटर. लेकिन उन तीनों को मिला के A लिमिटेड में होल्डिंग नहीं होना चाहिए 2% से ज़्यादा. यहाँ पे आपको सिर्फ कंपनी देखना है. दिस यू नीड टू रिमेंबर. ओके, लास्ट पॉइंट, none of nor you nor your relative is a CEO or director or by whatever name called of any non-profit organization that receives 25% or more of its receipts from the company or its promoter director or its holding subsidiary associate of the company. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट. आप जनरली ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, ये अपनी CSR एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए दूसरों को पैसा दे देती हैं, किसी भी NPO वगैरह, ट्रस्ट वगैरह को. तो ऐसी किसी भी NPO या ट्रस्ट का जो कि 25% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी से रिसीव कर रही हो, कंपनी से नहीं, नॉट फ्रॉम द कंपनी ओनली, कंपनी से, कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर से, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट से अगर 25% से ज़्यादा रिसीट्स आ रही हैं उस NPO को, तो उस NPO के CEO या डायरेक्टर या कोई भी पर्सन है, वो आपका रिलेटिव, मतलब आप या आपका रिलेटिव, वो उस NPO का कुछ भी नहीं हो सकता. बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, मतलब नॉट जस्ट दीज टू, आपका कोई भी एसोसिएशन नहीं होना चाहिए एक ऐसी NPO के साथ जिस NPO का टोटल जो रिसीट्स है उसका 25% हमारी तरफ से जा रहा हो. हम कौन है? जिसकी कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, ठीक है ना. अच्छा, यहाँ पे अपने को क्या पॉइंट देखना है, सी
25% और मोर ऑफ इट्स रिसीट्स फ्रॉम कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। यहाँ ये नहीं लिखा होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के प्रमोटर डायरेक्टर, मतलब क्या, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के प्रमोटर डायरेक्टर से अगर उस एनपीओ को कुछ मिल रहा है उसको अपने को इग्नोर करना है, नहीं देखना, सिर्फ कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर और कंपनी और होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का अपने को वो देखना है, रिसीट्स देखना है, ठीक है। या फिर उस एनपीओ ने 2% और मोर वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है कंपनी में। अगेन यहाँ पे आपका एसोसिएट या फिर सब्सिडरी या फिर होल्डिंग इंक्लूड नहीं है। अगर एनपीओ ने 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर आपकी होल्ड कर रखी है, मतलब आपकी कंपनी की 2% से ज़्यादा की वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है, तो आप उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन दे रखी है, एक बार ये देख लेते हैं। हु पोजेस अदर क्वालिफिकेशंस एज पर अंडर रूल 5, ये रूल 5 में बोला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अप्रोप्रिएट स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इन फील्ड ऑफ फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशन वगैरह वगैरह। ये सारा आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। उसका रेलिवेंट एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस होना चाहिए फलानी फील्ड का। ये सारा सीए फाइनल का कोर्स लगा लो एक तरीके से, ठीक। देन यहाँ पे क्या बोला है, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव को क्लॉज 1, 2, 3 ऑफ डी, वो जो रिलेटिव वाला था ना, उसमें इंडेटेड नहीं होना है कंपनी, होल्डिंग एसोसिएट और देयर प्रमोटर डायरेक्टर में, या फिर गिवन ए गारंटी सिक्योरिटी इन रिलेशन टू द कंपनी, इन रिलेशन टू थर्ड पार्टी का इंडेटेडनेस इन द कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और देयर प्रमोटर्स। यहाँ पे दोनों में देयर प्रमोटर्स आएगा, ठीक है ना, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख रुपए। तो ये हमने पढ़ दिया। देन मूविंग अहेड, डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो 49(6), ये जो हमें ऊपर लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ के आया ना, कि ये उन सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और कब कब आपको ये डिक्लेरेशन देना है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में देना है जिसमें आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज एन डायरेक्टर पार्टिसिपेट करते हो, उसके बाद हर साल की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में देना है। और जब भी कोई सर्कमस्टांसेस में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में चेंज होते हैं, फॉर सपोज कंपनी ने फर्दर इशू ऑफ शेयर्स कर दिया, तो भी आपको डिक्लेरेशन देना है कि हाँ जी, भले ही कंपनी ने फर्दर इशू ऑफ शेयर्स किया है, लेकिन स्टिल आई एम स्टिल होल्डिंग दिस मच शेयर्स ओनली, तो मैं अभी भी एलिजिबल हूँ फॉर बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड हेंस आई कंटिन्यू टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ऐसा करके आपको डिक्लेरेशन देना है। कब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, जिसमें आप एज अ डायरेक्टर पार्टिसिपेट करते हो, हर साल की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, और जब भी कोई चेंज इन सर्कमस्टांसेस होता है तो। ओके, द नेक्स्ट है कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये अपने कोर्स में नहीं है। इसमें क्या लिखा है कि शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिलेटेड कोड है, जिसमें कि आपका मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, प्रोविजंस वगैरह ये सब आपका बता रखा है। देन रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 197 एंड 198, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिलेगा, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एंड ही मे रिसीव रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ दीज थिंग्स। क्या क्या मिल सकता है, फ़ी मिल सकता है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए वो एलिजिबल है, एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन ओनली इफ इट इज़ अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने ऊपर भी बताई थी, सिटिंग फीस के लिए भी वो एलिजिबल होता है, ठीक। देन अच्छा, यहाँ पे लिखी हुई है ये बात, अकॉर्डिंग टू रूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सिटिंग फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी लेस देन द सिटिंग फीस विच इज़ पेबल टू अदर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ओके, देन टेन्योर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, टेन्योर पे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी, तो एक बार इसको भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्रोविजंस आर स्टेटेड एज अंडर टर्म सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152, an independent director shall hold office for a term up to 5 consecutive years in the board of company। मैक्सिमम 5 साल तक का टर्म हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 साल से कम नहीं हो सकता।
एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक जो टर्म होता है वो मैक्सिमम 5 साल तक का हो सकता है। उसमें वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जितना हो उतना ज़रूरी, उतना हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 5 साल के बाद क्या, तो 5 साल के बाद ही इज़ एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है ना। तो वो रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा और डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है। तो 5 साल मैक्सिमम, एक बार 5 साल के लिए, फिर एक और बार 5 साल के लिए मैक्सिमम। ही कैन मैक्सिमम बी अपॉइंटेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 10 ईयर्स, 5 ईयर्स ईच के 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए वो मैक्सिमम अपॉइंट हो सकता है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम उसको अपॉइंट करोगे तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और इसका डिस्क्लोजर आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम उसको अपॉइंट किया, चलेगा। सेकंड टाइम आपने स्पेशल रेजोल्यूशन से जब उसको अपॉइंट किया है तो उसको निकालने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा। ओके, नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ये अपॉइंटमेंट होता है और निकलता भी फर्स्ट टर्म के बाद, अगर उसको रिमूव करना है फर्स्ट टर्म में तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही वो निकलेगा। सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों के दोनों स्पेशल रेजोल्यूशन से होंगे, वही यहाँ पे लिखा है। According to the first provision to section 169(1), an independent director reappointed for second term shall be removed by the company only by passing a special resolution, ठीक है। देन लिमिट ऑन होल्डिंग ऑफ ऑफिस, लिमिट ऑन होल्डिंग में है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा के लिए होल्ड नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि उसने पहले 3 साल के लिए होल्ड करा, 2 साल के लिए कुछ नहीं किया, फिर अगले 2 साल के लिए होल्ड करा, तो ऐसा नहीं है कि वो और 5 साल के लिए होल्ड कर सकता है। नो, ही कैन होल्ड एन ऑफिस फॉर मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 5 ईयर्स ईच, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड यहाँ पे रहेगा। कूलिंग पीरियड फॉर अपॉइंटमेंट, ही शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 ईयर्स ऑफ सीजिंग टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 3 साल के बाद ही वो, कूलिंग पीरियड के बाद वो रीअपॉइंट हो सकता है। हाउएवर ड्यूरिंग द सेड पीरियड ऑफ 3 years ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड इन और is associated with the company in any other capacity directly or indirectly। कूलिंग पीरियड, ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड के दौरान वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी कैपेसिटी में, नॉट नीदर एज एन एम्प्लॉय नॉर एज डायरेक्टर वगैरह, किसी भी कैपेसिटी में वो कंपनी से एसोसिएटेड नहीं हो सकता। कंपनी से, ये याद रखना, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी वगैरह से वो एसोसिएट हो सकता है, कंपनी से एसोसिएट नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 10 and 11 एनी टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट शैल नॉट बी काउंट। अच्छा, अगर कोई आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कंपनीज एक्ट 1956 में अगर कुछ सर्व कर रखा है कुछ पीरियड, तो उस पीरियड को हम काउंट नहीं करेंगे इन दीज 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 years ईच में, ठीक है ना। वो सारा 1956 वाला सारा जितना भी टेन्योर होगा उसको हमने अवॉइड करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर लेस देन 5 years, इसमें ये क्लैरिफिकेशन वही है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, लेकिन वो लेस देन 5 years के लिए भी अपॉइंट हो सकता है, और जितने भी टाइम के लिए वो एक बार अपॉइंट होगा उसको 1 टर्म में इंक्लूड करेंगे। जितने भी टाइम, मैक्सिमम कैपिंग 5 years, उसको 1 टर्म में इंक्लूड करेंगे और मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए वो अपॉइंट हो सकता है। देन लाइबिलिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फॉलोइंग पर्सन शैल बी लाइबल फॉर फॉलोइंग एक्ट। क्या क्या मतलब कौन कौन, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बीइंग अ प्रमोटर और की मैनेजरल पर्सनल, ये किस किस एक्ट के लिए लाइबल हो सकते हैं, तो एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय द कंपनी विच हैड अकर्ड विद देयर नॉलेज, इस उनकी नॉलेज से अगर कोई एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन हुआ है कंपनी में, या फिर उनकी कंसेंट से हुआ है, या फिर उन्होंने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया था उससे हुआ है, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि डायरेक्टर प्रमोटर नहीं है, वो लोग लाइबल हो सकते हैं। देन रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स जो है दैट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब क्या मतलब, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डू नॉट रिटायर बाय रोटेशन। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनी डायरेक्टर, ये मैंने भी आपको डिस्कशन में स्टार्टिंग में बता दिया, एक बार रीड कर लेते हैं।
Appointment of nominee director cannot be taken as a substitute for appointment of independent director, though a nominee director is also independent of other board members, but this independence does not make him an independent director. He is appointed to safeguard the interest of respective financial institution to which he belongs. Okay. Nominee director appointment is mandatory only if financial institution so desires, because the financial assistance given by it to the company or the government requires such appointment to the representation of its interest. Then an independent director is appointed by the prescribed companies mandatorily. He is appointed to promote the confidence and all ये तो कुछ नहीं है. In fact, the companies in which his appointment is compulsory are much larger than the companies, and therefore they must be well managed so that confidence of stakeholder is not shaken and their investment remains in safe hands. Okay. Then this is important. The independent directors are required to hold at least one meeting in a financial year without the attendance of non-independent directors and members of the management. ठीक है, यह आपका इम्पोर्टेंट है. उसके बाद एग्जेम्पशंस मतलब इसके काफ़ी सारे प्रोविजंस हमारे सेक्शन 8 कंपनीज को नहीं लगते हैं. इफ़ द सेक्शन 8 कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 एंड 137. ठीक है ना, ये रहा सेक्शन 8 कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड. ओके. So this is all about this concept. I hope you enjoyed watching it, and if you did so, please hit the like button, and for more such videos please subscribe to my channel. Thank you.